السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور نوشین اپنے چینل پر اپنے سبھی لسنرز کو ویلکم کہتی ہے۔ لسنرز کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں ایک اور بہت ہی دلچسپ خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں، اور یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ جرمنی سے یاسر شیئر کر رہے ہیں۔ یاسر کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک سچی خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ 2009 کی بات ہے، تب میں کوئٹہ میں ہوتا تھا۔ میرے دو دوست بھی، اسد اور رضا۔ ایک دفعہ ہم لوگ تینوں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ باتوں باتوں میں ایک دم سے جنات اور غیر مرئی مخلوقات کا ذکر چھڑ گیا۔ اس وقت ہم لوگ ٹین ایجر ہوا کرتے تھے۔ ہم لوگوں کو بالکل بھی غیر مرئی مخلوقات کے وجود پر یقین نہیں تھا، یعنی ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ غیر مرئی مخلوقات، جنات محض قصے اور کہانیوں کے کوئی کریکٹرز ہیں جن کا ریئل لائف سے کوئی بھی کنیکشن اور تعلق نہیں ہے، کیونکہ ہم نے کبھی بھی اپنی زندگی میں غیر مرئی مخلوقات کا نہ تو کوئی ایسا واضح ایکسپیرینس دیکھا تھا اور نہ ہی کبھی ان کو محسوس کیا تھا۔ ہم لوگوں نے باتوں ہی باتوں میں ایک پلان کیا کہ کیوں نہ ہم لوگ رات کے ٹائم قبرستان چلتے ہیں اور وہاں پر جا کے اس چیز کی کھوج لگاتے ہیں کہ کیا واقعہ ہی جنات اور غیر مرئی مخلوقات قبرستان میں پائے جاتے ہیں۔ اسد کے گھر کے پاس ہی ایک قبرستان تھا جو کہ کافی پرانا تھا، اور اس کے گھر کے قریب ہی ایک چھوٹی سی گلی تھی جو سیدھی اس قبرستان کے پاس ہی جا کر کھلتی تھی، یعنی اس کو شارٹ کٹ راستہ بھی کہا جا سکتا تھا۔ پلان کے مطابق رضا اور میں، ہم لوگ رات کے ٹائم اسد کے گھر چلے گئے۔ ہم لوگوں نے رات ہونے کا انتظار کیا۔ سردیوں کا موسم تھا اور رات بہت جلدی سناٹا ہو جاتا تھا ہر طرف۔ 1 بجے کا ٹائم تھا، ہم لوگ وہاں سے نکلے۔ ہم لوگوں نے آلریڈی اپنے ساتھ چپس، ڈسپوزیبل گلاس اور بوٹلز لی ہوئی تھیں کہ وہاں پر ہم لوگ قبرستان میں جا کر ٹائم سپینڈ کریں گے اور کسی ایسی جگہ پر بیٹھیں گے جہاں پر کافی زیادہ قبریں ہوں گی، اور دیکھیں گے کہ کیا واقعہ ہی غیر مرئی مخلوقات، جنات ہمیں نظر آتے ہیں کہ نہیں۔ جب ہم لوگ باہر نکلے تو دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا، گلیاں سنسان تھیں، بس دور کہیں آدھی رات کا ٹائم تھا اور کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی، وہ بھی ہوا میں جیسے دور سے آوازیں آتی ہیں۔ ہم لوگ بڑے ایکسائٹیڈ ہو کر وہاں سے جا رہے تھے۔ اس تنگ گلی کو کراس کر کے ہم لوگ قبرستان میں آ گئے تو وہاں پر بہت ہی پرسرار سا ماحول تھا۔ فضا میں عجیب سی پرسراریت تھی اور بہت زیادہ خاموشی تھی۔ ڈھونڈنے پر بھی کوئی چیز نظر وہاں پر نہیں آ رہی تھی سوائے دھند اور سردی کے۔ ہم لوگوں نے بہت موٹی موٹی جیکٹس پہنی ہوئی تھیں کیونکہ آدھی رات تھی اور ہم لوگوں نے وہاں پر ٹائم سپینڈ کرنا تھا۔ ہم لوگوں نے ایک ایسی جگہ ڈھونڈی جہاں پر بہت زیادہ قبریں ایک ساتھ تھیں اور ان کے پاس گھنے درخت بھی تھے۔ وہاں پر ہم لوگ بیٹھ گئے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ تقریباً تھوڑی ہی دیر گزری تھی، ہم لوگوں کو اس طرح سے محسوس ہوا جیسے ہم لوگوں کے قریب سے بہت بیڈ اسمیل آ رہی ہے۔ اس طرح سے محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی مردہ جانور کی اسمیل ہوتی ہے، کہ اگر کوئی مردہ جانور کافی دنوں تک کہیں مردہ پڑا ہو تو اس کی ایک اسمیل آتی ہے، اس طرح کی ہم لوگوں کو اسمیل آئی، اور وہ اسمیل تھوڑی ہی دیر کے بعد بالکل آنا بند ہو گئی، غائب ہو گئی۔ ہم لوگ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایسا محسوس ہوا کہ قبروں کے درمیان سے کوئی کالے رنگ کی بلی بالکل ہم لوگوں کے سامنے آ کر بیٹھ گئی ہے۔ ہم لوگوں نے جب اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں دیکھی تو اس پر غور کیا تو وہ ایک کالی سیاہ بلی تھی جو ہم لوگوں کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ بالکل چپ چاپ وہ ہم لوگوں کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ ہم لوگوں نے بہت کوشش کی کہ اس کو وہاں سے بھگا سکیں، مگر وہ ہم لوگوں سے بالکل بھی نہیں ڈر رہی تھی۔ اسے دیکھ کے تھوڑے سے ہم لوگ خوفزدہ ہو گئے تھے کہ ایک دم سے یہ بلی کہاں سے آ گئی ہے، اور ہم لوگوں سے ڈر کے بھاگ بھی نہیں رہی۔ ابھی وہ بلی وہیں پر تھی۔ ہم لوگوں کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے بالکل جس طرف ہم لوگ بیٹھے تھے اسی طرف سے زمین کے اندر سے کسی چھوٹے سے بچے کی رونے کی آواز آ رہی ہے۔ وہ آواز بہت زیادہ واضح تھی۔ جب ہم نے وہ آواز سنی تو ہم لوگ ڈر گئے۔ ایک دفعہ ہم لوگ ہر چیز بھول گئے کہ اتنی رات کا ٹائم ہے،
तो ये रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है, वो भी इतने छोटे बच्चे की। वो बिल्ली टस से मस नहीं हुई और वहीं पर बैठी रही। हम लोग उठकर इधर उधर देखने लग गए, मगर हम लोगों को कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी, मगर बच्चे के रोने की आवाज़ बहुत ज़्यादा वाज़िया थी। हम लोग काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा हो गए कि एकदम से पता नहीं हम लोगों के साथ क्या होने लग गया है। अभी हम लोग इधर उधर देख ही रहे थे, असद की नज़र पड़ी तो उसने क्या देखा कि दरख्तों के दरमियान में से जिस तरह से हवा में एक सफ़ेद रंग का वजूद खड़ा है जो कि ज़मीन से ऊंचा है, उसका बिल्कुल वाज़िया सर भी नज़र आ रहा था। जब हम लोगों की नज़र पड़ी तो हम लोगों की एकदम से चीखें निकल गईं। असद ने जब हम लोगों को बताया तो हमने भी उस चीज़ को देखा। अभी हम लोग गौर कर ही रहे थे कि वो जो भी चीज़ थी वो हवा में तहवील हो गई और एकदम से हम लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए कि हम लोगों ने क्या मंजर देख लिया है। अभी हम लोग यही सब कुछ देख ही रहे थे, हम लोग वहाँ से वापस आने लगे। जैसे ही हम लोग पीछे पलटे, बिल्कुल सामने जो कब्रें थी वहाँ से इस तरह से आवाज़ें आ रही थी जैसे ज़ोर ज़ोर से आपस में बर्तन अगर लगते हैं या बर्तनों को एक दूसरे के साथ बजाया जाता है तो एक आवाज़ आती है। हम लोगों के खौफ का कोई ठिकाना नहीं था। हम लोगों ने इतने गर्म कपड़े पहने हुए थे, इसके बावजूद हम लोगों का पसीने छूट गए थे खौफ के मारे कि न जाने हम लोगों के साथ हो ही क्या रहा है। और वो जो बिल्ली थी वो मुसलसल हम लोगों के पीछे आ रही थी। खौफ के मारे हम लोगों की हालत बहुत ज़्यादा गैर हो चुकी थी। अभी हम लोग उस चीज़ पर गौर कर रहे थे कि वो बर्तनों की आवाज़ें, वो बच्चे के रोने की आवाज़ें और वो सफ़ेद वजूद क्या था। एकदम से जिस तरफ से वो बर्तनों के बजने की आवाज़ आ रही थी वहाँ से एक काली सी चीज़ हम लोगों ने हवा की तरफ ऊपर जाती देखी। हम लोगों का बहुत बुरा हाल था, हम लोग चीखें मार रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे दूर दूर तक हम लोगों की चीखें सुनने वाला कोई भी नहीं है। हम लोग जैसे ही वहाँ से भागकर बाहर आने लगे, हम लोगों को अपने बैक साइड से खौफनाक आवाज़ें आने लगी और वो आवाज़ें इस तरह से थी जैसे कोई रोता है। हम लोग बहुत खौफज़दा हो गए थे। हम लोग बिल्कुल नहीं जानते कि किस तरह से हम लोग वहाँ से भागे और भाग कर वहाँ से निकले। हम लोगों का जो दोस्त रज़ा था वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गया। 2-3 दिन उसका बुखार बिल्कुल कम हो ही नहीं रहा था। फिर हमने ये बात सबको बताई। हम लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा थे। हम लोगों ने तौबा की कि हम कभी भी ये बात नहीं सोचेंगे कि गैर मरी मखलूक़ात का वजूद नहीं होता। हम लोगों को तब यकीन आया था जब हमने अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया। फिर कुछ अरसे के बाद रज़ा की तबीयत भी ठीक होने लग गई, लेकिन हम लोग कभी भी अपनी ज़िंदगी में होने वाला ये वाक़या नहीं भूल सकते। हम लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें ऐसी खौफनाक चीज़ों से बचा लिया, सही सलामत बचा लिया हम लोगों को। ये मेरी ज़िंदगी की सच्ची खौफनाक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया यासिर आपका। लिसनर्स, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि लोग किस तरह से गैर मरे मखलूक़ात के वजूद से इनकार कर सकते हैं। कुरान पाक में भी गैर मरी मखलूक़ात के वजूद का जिक्र है, फिर किस तरह से हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं कि जिन्नात और गैर मरी मखलूक़ात नहीं पाए जाते। जो भी लोग गैर मरे मखलूक़ात के, जिन्नात के वजूद से इनकार करते हैं वो कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसे हादसों से ज़रूर दो चार होते हैं। अपना ख्याल रखा करें, इस मखलूक को कभी भी मजाक मत समझें। अपनी ज़िंदगी को कभी भी ऐसे ख़तरों में मत डालें। हमेशा अपनी हिफाजत करना सीखें। जो भी इंसान, चाहे वो लड़का है, लड़की है या कोई भी है, किसी एज ग्रुप का भी है, जब भी आपस में शर्तें लगाकर, मजाक बनाकर गैर मरे मखलूक़ात को खोजने के लिए, उनको ढूंढने के लिए ऐसे मकामात पर जाते हैं तो फिर गैर मरे मखलूक़ात उन्हें अपना आप ज़ाहिर करते हैं। क्योंकि हम लोग जाते ही इस माइंड से हैं कि हमने वहाँ पर जाकर गैर मरे मखलूक़ात को एक्सपीरियंस करना है या देखना है। कभी भी अपने साथ ऐसा मत किया करें, क्योंकि इंसान जब भी अपनी हद से बढ़कर कुछ खोजने निकलता है या कुछ खोजने के लिए जाता है तो वो नुकसान उठाता है। गैर मरे मखलूक़ात हर जगह पर पाए जाते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि हर जगह पर वो अपना आप ज़ाहिर करें। जब इंसान उन्हें तंग करने की कोशिश करता है तो फिर गैर मरे मखलूक़ात इंसान के सामने अपना आप ज़रूर ज़ाहिर करते हैं। बहुत से ऐसे लोग अपने आप के नुकसान करवा बैठते हैं, यहाँ तक कि बाज़ लोग अपनी ज़िंदगियों से भी हाथ धो बैठते हैं जब वो हद से ज़्यादा खुद को ऐसी बातों में या ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व करते हैं
बीइंग अ मुस्लिम हम लोगों का बिलीव है कि ये मखलूक एग्जिस्ट करती है। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मेरे साथ उमैर शेयर कर रहे हैं इंग्लैंड से। उमैर कहते हैं कि मैं लेट नाइट जॉब करता था। मेरी 2 शिफ्ट होती थी जॉब की, एक डे टाइम की और एक इवनिंग में। जो मेरी इवनिंग की होती थी वहाँ से वापसी में मुझे काफ़ी देर हो जाया करती थी, और जहाँ पर मैं जिस स्टोर पर मैं काम करता था वो बिल्कुल हम लोगों के टाउन में ही था, इसलिए मैं पैदल ही वहाँ से आया जाया करता था। वहाँ पर अक्सर मौसम ऐसा ही होता है जैसे बारिश और बादल होते हैं। एक दफ़ा मैं वापस आ रहा था, स्टोर को बंद करके वापस आ रहा था, तो हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी। जिस रास्ते से मैं गुज़र कर आता था वहाँ पर एक बहुत पुराना सा घर था, जहाँ पर मेरे ख्याल से कोई भी नहीं रहता था, क्योंकि मैंने वहाँ पर कभी भी किसी को नहीं देखा था। दिन के टाइम भी मेरा गुज़रने का और आने जाने का वही रास्ता होता था, मगर वहाँ पर मुझे कोई भी नज़र नहीं आता था। लेकिन अक्सर कभी कभार जब मैं रात को देर से वहाँ से आता था तो वहाँ पर जो उनका एक रूम था उसकी लाइट ऑन होती थी। मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता था कि मैंने दिन के टाइम तो यहाँ पर कभी किसी को नहीं देखा, भी यहाँ पर रात के टाइम कौन होता है। इसी तजस्सुस में मैंने ये कहा कि क्यों ना मैं इस घर के पास से गुज़रता हूँ और झांक कर देखता हूँ, शायद यहाँ पर कोई रहता हो। जैसे ही मैं उस घर के करीब आने लगा मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उसके अंदर से बोलने की आवाज़ें आ रही हैं। अब मुझे यकीन हो गया था कि वाकई ही यहाँ पर कोई रहता है। लेकिन हैरानगी इस बात की थी कि अगर यहाँ पर कोई रहता है तो कभी तो दिन के टाइम भी यहाँ पर कोई नज़र आए। मैं यही बातें सोचता हुआ उस घर के पास जाने लगा। बारिश हल्की हल्की हो रही थी। जैसे ही मैंने वहाँ पर एक विंडो में झांक कर देखना चाहा, मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया। थोड़ा सा उनका जो साइड से विंडो की एक ग्लास था वो हल्का सा क्रैक था, और उसमें से थोड़ा बहुत अंदर नज़र आ भी रहा था। जैसे ही मैंने वो जो छेद सा था उसमें से देखना चाहा, एकदम से उस विंडो का कर्टन किसी ने हटाया। यानी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जो इस घर में मौजूद हैं कहीं उनको ये फील हो गया है कि उनको बाहर से कोई झांक रहा है। मैं फ़ौरन डर कर साइड पर हो गया। जैसे ही मैंने 1-2 मिनट के बाद फिर वहाँ पर झांक कर देखना चाहा तो वहाँ पर चेयर के ऊपर कोई बैठा था, यानी किसी का सर नज़र आ रहा था, और देखने में ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई ओल्ड एज लेडी बैठी हुई है वहाँ पर। बहुत मैं हैरान हुआ कि इसने कर्टन क्यों हटाया है। अभी मैं इस बात पर गौर कर ही रहा था, जैसे ही मेरी दोबारा नज़र पड़ी, वो जो मैं बूढ़ी औरत वहाँ पर बैठी देख रहा था वो वहाँ से गायब हो चुकी थी। और एकदम से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरे कंधे के ऊपर किसी ने हाथ रखा है। जैसे ही मैंने पलट कर देखा, वो बूढ़ी औरत जो अंदर चेयर पर बैठी मैं देख रहा था मेरे पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा बहुत भयानक था। जब मैंने उसको इतने करीब से देखा मेरी चीखें निकल गईं और मैंने वहाँ से भागना शुरू कर दिया। जैसे ही वहाँ से भागता भागता मैं थोड़ा ही दूर गया, मेरी बैक साइड से बहुत खौफनाक हंसी की आवाज़ें आ रही थी। मैं बहुत ज़्यादा डरा और मैंने पीछे पलट कर देखा तो वो लाइट भी ऑफ हो गई थी और वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा रहा। मैंने सारी रात बहुत डर के गुजारी। खौफ के मारे मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। उसका भयानक चेहरा मेरी आंखों के आगे से हट ही नहीं रहा था। अगले दिन हस्बे मामूल जैसे मैं अपनी जॉब पर जाने लगा तो मैं जानबूझ के उस तरफ से गुजरने लगा कि मैं देखता हूँ मे बी डे टाइम भी वो बूढ़ी औरत मुझे यहाँ पर नज़र आ जाए। अभी मैं वहाँ से गुजर ही रहा था कि टाउन का एक आदमी मुझे मिला और उसने मेरे से ये पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो मैंने इसको ये कहा कि मैंने कल यहाँ पर किसी को देखा था। तो उसका ये कहना था कि यहाँ पर कोई भी नहीं रहता। जिनका ये घर था वो मियाँ बीवी यहाँ पर रहते थे और उनकी डेथ हुए भी बहुत अरसा गुजर चुका है। ये घर तब से बंद ही है, यहाँ पर ना कोई आता है और ना ही कोई जाता है। जब मैंने उसकी ये बात सुनी मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, फ़ौरन वहाँ से चला गया। फिर दोबारा कभी भी मैं जब भी वहाँ से गुज़रता था उस तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था, मगर कभी कभार मुझे वहाँ पर किसी की मौजूदगी का एहसास होता था। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और कभी भी इस हैपनिंग को फरामोश नहीं कर सकता।
یہ میری سچی خوفناک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ عمیر آپ کا. لسنرز پلیز اپنا خیال رکھا کریں, اپنے یہ شوق مت پورے کیا کریں کہ ہم لوگ اسپیشل انویٹیشن دیں غیر مرئی مخلوقات کو, جنات کو, کہ وہ ہم لوگوں کے سامنے آئیں اور اپنا آپ ہمیں دکھائیں, تو تب ہی ہم ان پر یقین کریں گے. جب تک انسان اپنی حفاظت خود نہیں کرتا, اس کی حفاظت کوئی بھی نہیں کرتا. اپنا خیال رکھا کریں, نماز پڑھا کریں, باوضو رہا کریں, آیت الکرسی پڑھ کے, درود پاک پڑھ کے اپنے اوپر پھونکا کریں, اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا کریں اور اللہ سے دعا کیا کریں کہ ہمیں ایسے کاموں سے محفوظ رکھے اور کبھی بھی غیر مرئی مخلوقات ہم لوگوں کی زندگی میں اثر انداز نہ ہوں. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی؟ آپ لوگ بھی اپنی زندگی کی خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے فیس بک پر بھی جوائن کر سکتے ہیں. نوشین ویک سے میرا فیس بک آئی ڈی ہے, وہیں پر میرا خوفناک کہانیوں کا گروپ بھی ہے, اسے بھی جا کر جوائن کریں. اور آپ لوگ مجھے انسٹا پر بھی فالو کر سکتے ہیں, خوفناک کہانیوں سے میرا پیج ہے. انشاءاللہ تعالی 1 جن کو آپ لوگوں کے ساتھ میں لائیو ویڈیو کروں گی اور آج میں اس کی ٹائمنگ بھی پوسٹ کر دوں گی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. نوشین کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ نگہبان.